everyone. I hope you all are doing well. Myself, Majla. Now, this is last part of South Asia and the contemporary world. Okay, and in this last part, that is the sixth part, we are going to discuss about Maldives political history. This is new topic. Has been added by CBSE for this session 2020-21. Okay, so let's discuss in detail about Maldives political history. Let's start. See, if you're not done the previous parts, kindly go through all those video lectures first. I provided you the link of the playlist in the description. Okay, now let's start. Now, first of all, introduction about Maldives. Okay, see, Maldives is a very small island nation in South Asia, located in Arabian Sea of Indian Ocean. You can see here over this place the Maldives is located. It look like a garland. Okay, it's like a जैसे माला होते हैं ना उस shape का है. That's why it is called Maldives. Now let me show you the map of Maldives. You can see here, this is Indian Ocean, and over here India, Sri Lanka, and you can see here Maldives. Okay, let me zoom in. Now we can see clearly all the small islands of Maldives. Okay, it is a collection of small islands. इसीलिए मालदीव्स को आर्किपेलगो आइलैंड भी कहते हैं. You can see. I hope geographical location is clear to all of you. Fine. Now see, you can see it is located at a very strategically very important location. So for India's security, if India want to reduce the dominance of China in this location, then definitely Maldives and India need to maintain a very good relationship with Maldives. Fine. Okay, let's look at the historical background of Maldives first. Okay, this is not at all important for your exam, just to make the concept very easy to understand. We should know about the background. Fine. Now you can see here, this is Sri Lanka. उस टाइम पे हम कहते थे सिलोन, ठीक है. And यहाँ पर around mid of the 17th century, in this Sri Lanka, Ceylon, you can say, this was controlled by Dutch. Fine. उससे पहले पोर्चुगीज़ का यहाँ पर इन्फ्लुएंस था. पोर्चुगीज़ से डच ने कंट्रोल कर लिया था. एंड देन फ्रॉम दिस सिलोन, डच वर एक्चुअली ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ मालदीव्स. सो फाइनली ये हुआ कि अराउंड 1797 के अराउंड ब्रिटिशर्स they control this Ceylon from Dutch, and then they made this Maldives as their protectorate state. Fine. Now protectorate state means basically you can say it is a dependent territory. ठीक है, तो यहाँ पर मालदीव्स जो है एक डिपेंडेंट टेरिटरी है अंडर ब्रिटिशर्स. तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी है, एंड मालदीव्स जो है वो ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंड है. ओके, सो इस पर्टिकुलर सिस्टम में प्रोटेक्टरेट में बेसिकली ये होता है कि दैट ब्रिटिशर्स they have more power in handling the Maldives external matters. Okay, foreign relation वगैरह वो हैंडल करेंगे. इंटरनल मैटर्स के ऊपर थोड़ा सा ऑटोनॉमी जो होगा वो मालदीव्स के जो वहाँ पर लोकल सिस्टम जो भी मैनेज करे, फॉर एग्जांपल लाइक सुल्तान्स दे वर रूलिंग, उनके पास वो पावर होगा. बट अल्टीमेटली जो सुप्रीम अथॉरिटी जो होगा दैट विल बी विद द ब्रिटिशर्स. सो हेंस वी कैन से इट इज़ अ डिपेंडेंट टेरिटरी. ओके, they are dependent on Britishers. Fine. And see, Maldives, it remained a protectorate till 1953, और 1953 में for a short period of time it became a republic. Okay, उसके बाद फिर से वहाँ पर सुल्तान्स का रूल था. तो when it became a republic for that short period of time, उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट बने थे that was मोहम्मद आमीन दीदी. Okay, he was the first president of Maldives, and then finally Maldives, it got independence in 1965, and 1968 it become a प्रेसिडेंट डेमोक्रेसी यहाँ पर इस्टेब्लिश हो चुका है. एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म जो है उन्होंने इस्टेब्लिश किया था. फाइन. तो यहाँ पर देखना 68 में सेकेंड टाइम रिपब्लिक बना है. सो ओके, सो आफ्टर बिकमिंग अ रिपब्लिक फॉर द सेकेंड टाइम, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट बना था दैट वाज इब्राहिम नासिर. ठीक है, सो इब्राहिम नासिर ही बिकेम द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स. अगर ऑर्डर वाइज देखें, आफ्टर मोहम्मद आमीन दीदी, इब्राहिम नासिर जो है ही बिकेम द second president. तो as per the order second position he occupied, but since second republic के first president बने थे, तो उस second republic के according he is the first president. ठीक है, second republic कब बना था? after independence in 1965-68 में. I hope this one clear to all of you. अच्छा, okay, इब्राहिम नासिर के बाद जो president बने थे that was अब्दुल गयूम.
After Gayoom, actually ruled for nearly 30 years. 1978 he became the president. Before that, Ibrahim Nasir, he was president from 1968 to 78. Okay, so Gayoom, he became president in 1978 and he ruled for nearly 30 years. और 19 देखो 30 years का period है तो definitely 1978 से 2008 तक हुआ. Okay, so in this 30 years time period nearly six consecutive जो election जो थे after every 5 years, उसमें कोई opposition नहीं था. He was ruled made as a president again and again. During this 30-year time period, it was marked that you ruled in a very autocratic manner, dictatorship kind of thing उन्होंने rule किया था. And during his time period 3 times यहाँ पर को अटेम्प्ट हुआ था, थक्का पलट होने का यहाँ पर ट्राई किया था. एंड 3 टाइम्स में से 1980, 1983, ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंस नहीं है. दिस वन कीप इन माइंड, 1988 में जब यहाँ पर कू का अटेम्प्ट हुआ था, दैट टाइम श्रीलंका में कुछ तमिल मर्सनरी ग्रुप्स थे. दे एक्चुअली ट्राई टू अटैक मालदीव्स, दे ट्राई टू इन्वेड दिस प्लेस और यहाँ पर वो पावर चेंज करना चाहते थे. ओके, गवर्नमेंट सिस्टम को. ओके, तो बेसिकली इसको वो रिमूव करना चाहते थे. In that attempt, Maldives, asked for help for different countries. USA से भी help demand किया था, and then from Pakistan, China as well. Finally, India, helped Maldives. और इंडिया की हेल्प की वजह से यहाँ पर जो ये को अटेम्प्ट हुआ था, that failed. Fine. So for that thing, India is even today, India का काफ़ी अप्रिसिएशन होते हैं that it done a very good thing at that particular time period. इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पे शो किया कि that it has a very गुड स्ट्रॉन्ग आर्मी. वो अपने कंट्री को भी प्रोटेक्ट कर सकता है, एट द सेम टाइम किसी और कंट्री को अगर हेल्प की ज़रूरत है तो वो वहाँ पर भी प्रोवाइड कर सकते हैं. राइट. सो यहाँ पर 1988 में वो जो हुआ था, दैट वॉज अंडर द ऑपरेशन कैक्टस. ओके, अच्छा ओके, देखो 30 ईयर्स के टाइम पीरियड में इसको ऑटोक्रेटिक रूल क्यों कहते हैं, कौन से प्रॉब्लम्स थे. प्रॉब्लम ये थे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ था इनके पर्टिकुलर टाइम पीरियड में. देन करप्शन के चार्जेस, violent protest within 2004 and 5, and then all these things led to serious kind of protest वगैरह हुए थे. and finally a major reform was required and काफ़ी reforms फिर हुए थे. and then in 2008 एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव कर दिया था. and then न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो इलेक्शन हुआ था, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, in that Mohammed Nasheed, he became the president of Maldives. And you can just notice the party. He belonged to Maldivian Democratic Party. You can see the picture of Mohammed Nasheed. Okay, अच्छा देखो मोहम्मद नशीद का जो टाइम पीरियड है फ्रॉम 2008 के बाद से 2013 तक, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस भी होते. फॉर एग्जांपल यू कैन सी 2011-12. ओके, सी 2011-12 में मालदीव्स में काफ़ी फॉर डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर प्रोटेस्ट हुए थे. ओके, एंड ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे अरब स्प्रिंग हो रहा था. ओके, टूनेशिया में स्टार्ट हुआ था एंड देन स्प्रेड टू इजिप्ट एंड नियर बाय लिबिया, डिफरेंट रीजन में वहाँ पर स्प्रेड हुआ था. एंड दैट टाइम पीरियड मालदीव्स में पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहे थे. ओके, सो इफ यू नॉट डन दैट अरब स्प्रिंग, यू कैन वॉच दैट वीडियो फ्रॉम द प्ले लिस्ट. नाउ फाइन. ओके, मोहम्मद नशीद जो थे, इस प्रोटेस्ट के वजह से जो नवंबर में 1 मई 2011 में स्टार्ट हुआ था, बिकॉज ऑफ दैट प्रोटेस्ट he resigned in February 2012 at gun point. I'm saying, okay, आर्मी जो पुलिस जो थे वो टोटली अगेंस्ट हो गए थे. लिटरली ऑन गन पॉइंट मोहम्मद नशीद को रिज़ाइन करना पड़ा. ही सेड दिस थिंग आफ्टर ही रिज़ाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट. उसके बाद एक शॉर्ट टाइम के लिए जो उस टाइम के वाइस प्रेसिडेंट थे वो प्रेसिडेंट बने थे, एंड देन फिर बाद में इलेक्शन हुआ था. ओके, अच्छा, कमिंग टू दी कॉजेज फॉर द प्रोटेस्ट. ये जो 2011-12 में प्रोटेस्ट हुआ था, व्हाट वर द कॉजेज फॉर दैट. The first one is that rising commodities price. जो भी चीज़ें जो थे, whatever the things available in the market, prices बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था. फर्स्ट वन. एंड सेकेंड वन, इकोनॉमिक सिचुएशन वॉज वेरी बैड. कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी पुअर हो गया था. ओके, एंड देन लोगों के जो वेजेस मिलते थे वो काफ़ी कम थे. एंड देन देयर वाज सम ग्रुप which were actually conservative group, you can say. They said that this present government is not actually promoting the those Islamic ideology in a proper way. Okay, so कुछ ऐसे जो कंजर्वेटिव ग्रुप्स थे वो ये मानते थे कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये इस्लामिक आइडियोलॉजी को प्रॉपरली प्रमोट नहीं कर रही है. एंड दे ऑल्सो मेड अ प्रोटेस्ट. ओके, एंड देन यहाँ पर इकोनॉमिक जो कंडीशन जो बहुत पुअर है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा था. एंड देन यहाँ इस्लामिक आइडियोलॉजी के वो ग्रुप्स के प्रोटेस्ट कर रहे थे.
And then there was one moment which sparked the movement, which sparked the protest. Okay, अरब स्प्रिंग जो हुआ था उसमें भी एक स्पार्किंग मोमेंट था. दैट वन पर्सन, दैट एक वेजिटेबल वेंडर था, वो उन्होंने आग लगा लिया था. उसके बाद वो प्रोटेस्ट जो था वो बहुत पावरफुल हो गया था. ओके, टूनेशिया में हुआ था वो इंसिडेंट. सेम वे यहाँ पर भी एक ऐसा स्पार्किंग मोमेंट हुआ था, एक स्पार्किंग इंसिडेंट हुआ था. बिकॉज ऑफ दैट मूवमेंट बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड व्हाट वाज दैट? Abdullah Mohammed, basically चीफ जस्टिस ऑफ मालदीव्स क्रिमिनल कोर्ट के, इनको बेसिकली अरेस्ट कर लिया था. मोहम्मद नशीद ने ऑर्डर दिया कि इनको अरेस्ट करने के लिए. एंड वाई ही वॉज अरेस्टेड? बिकॉज अब्दुल्ला मोहम्मद जो थे, इन्होंने बेसिकली जो फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थे, उससे पहले जो प्रेसिडेंट जो थे गयूम, यू रिमेंबर, जो 30 ईयर्स के लिए रूल किया था, अभी डिस्कस किया था हमने. तो दैट गयूम के अंडर जो बेसिकली उनके जो अलाइज जो थे, उनके ऊपर कुछ ह्यूमन राइट्स के केस, ह्यूमन राइट वायलेशन के केसेस, करप्शन के चार्जेस थे. एंड अब्दुल्ला मोहम्मद के ऊपर मोहम्मद नशीद ने ये कहा दैट ही इज़ नॉट एक्चुअली डूइंग दी प्रॉपर प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट ऑल दोज पीपल. फाइन, तो इसलिए इनको अरेस्ट कर दिया. एंड दिस स्पार्क द मूवमेंट. ओके, अब इससे प्रोटेस्ट काफ़ी हुआ, कुछ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हुआ था. डेफिनेटली इसमें कुछ इलेक्शन में उसका इम्पैक्ट होना था. तो डेफिनेटली ये हुआ कि उसके बाद 2013 में जब इलेक्शन हुआ था, एट दैट टाइम ही लॉस्ट द दिस इलेक्शन. और उसके बाद अब्दुल्ला यमीन, ही बिकेम द प्रेसिडेंट. ओके, अब्दुल्ला यमीन जो थे प्रोग्रेसिव पार्टी को बिलोंग करते हैं. और हमने जो मोहम्मद नशीद का डिस्कस किया था, ही एक्चुअली बिलोंग टू, यू कैन सी हियर, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी. अच्छा, वन थिंग आई वांट टू मेंशन हियर, मोहम्मद नशीद जो है ये प्रो इंडिया आइडियोलॉजी के हैं. बेसिकली इंडिया के ज़्यादा बेटर रिलेशन रखना चाहिए, उसमें बिलीव करते हैं. एंड देन अब्दुल्ला यमीन ये प्रो चाइना है. ओके, ये चाइना की तरफ ज़्यादा क्लोज है. यू कैन सी द फोटो. एंड देन उसके बाद जो लीडर आते हैं, इब्राहिम मोहम्मद सोली, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, जो नशीद का पार्टी है, सेम पार्टी है. ओके, ही बिकेम द प्रेसिडेंट इन 2018. और यहाँ पर इब्राहिम सोली जो है इज़ ऑल्सो प्रो इंडिया. फाइन. अच्छा, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं अबाउट दिस प्रो चाइना पर्सन. सो अब्दुल्ला यमीन ही बिकेम प्रेसिडेंट फ्रॉम 2013 से 18 तक. अच्छा देखो, अब्दुल्ला यमीन 6th प्रेसिडेंट बने थे मालदीव्स को. अंडर हीज गवर्नमेंट, he ruled in a very authoritative and autocratic manner. ठीक है, जो 5 years का जो उन्होंने रूल किया था, ही रूल्ड इन अ वेरी अथॉरिटेटिव मैनर. और यहाँ पर उस 5 years के टाइम पीरियड में जो भी ऑपोजिशन लीडर्स होते प्रोमिनेंट, उनको जेल में डाल दिया. एंड देन एग्जाइल मीन्स बेसिकली अपने देश से दूसरे देश में भेज देना. ठीक है, उन वहाँ पर भेज दिया. एंड देन ही कंट्रोल्ड ऑल द वेरियस इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जुडिशरी. सी, एक कंट्री में सबसे ज़्यादा, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में मेन चीज़ क्या होता है? जुडिशरी वहाँ इंडिपेंडेंट होना चाहिए. एंड ऑफकोर्स इलेक्शन कमीशन वहाँ इंडिपेंडेंट होना चाहिए. यहाँ पर देखो जुडिशरी में कंट्रोल कर लिया. एंड देन इलेक्शन कमीशन एज वेल. फाइन. तो पूरा गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था. तो यू कैन सी हियर समवेयर और दी अदर, यहाँ पर डेमोक्रेसी का बहुत ही ज़्यादा, यू कैन से हॉरिबल तरीके से उसका हत्या हो रहा है यहाँ पर. ओके, सो ही डन दैट वे. एंड इंटरनेशनल लेवल पे ऑल द यूरोपियन यूनियन इंस्टीट्यूशन, USA, जितने भी वेस्टर्न स्ट्रॉन्ग कंट्रीज, दे ऑल जस्ट लुक्ड एट मालदीव, व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन. फाइन. एंड दिस लीडर इज एक्चुअली वेरी क्लोज टू चाइना. और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रोमिनेंट कंट्रीज जो हैं, दे वर थिंकिंग कि ऐसा क्यों कर रहे हैं मालदीव में जो लीडर है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं. ओके, तो उन सभी को ये फील हुआ कि समवेयर और दी अदर यहाँ पर डेमोक्रेसी का बहुत ज़्यादा, यहाँ पर डेमोक्रेसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस का वायलेशन हो रहा है. एंड देन दे ऑल्सो फॉर इन 2018 में जब इलेक्शन हुआ था, एट दैट टाइम इंटरनेशनल जो वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, दे लाइक यूरोपियन यूनियन, USA, दे गिवन अ स्ट्रॉन्ग वार्निंग टू दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट. यामीन के गवर्नमेंट को वार्निंग दिया था कि दैट इफ दे डू एनी काइंड ऑफ यू कैन से वायलेशन इन मेकिंग द प्रॉपर इलेक्शन, फेयर इलेक्शन के लिए अगर कुछ भी उन्होंने वायलेट किया तो डेफिनेटली दे विल पुट सैंक्शन ऑन मालदीव. सैंक्शन मतलब काइंड ऑफ कुछ रेस्ट्रिक्शन, इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस होते हैं. दैट वी विल डिस्कस इन अनदर चैप्टर. फाइन. एंड देन देखो 2018 में जब इलेक्शन हुआ था, ऑफकोर्स यू नो दैट कि पूरे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में इनका कंट्रोल था. जुडिशरी में इलेक्शन कमीशन, इन स्पाइट ऑफ दैट कंट्रोलिंग ऑल द गवर्नमेंट मैकेनिज्म,
He lost the election and Ibrahim Mohammed Soli became the president. और इस इलेक्शन में नियरली मोर देन 90% वोटर्स टर्नआउट थे, 90% लोग वहाँ के लोगों ने वोट किया था, एंड देन नियरली 58% ऑफ वोट जो थे वो Ibrahim Mohammed Soli को मिला, and he became the president, that he belonged to Maldivian Democratic Party. Okay, and this shows the democratic achievement. In spite of इन सारी चीज़ों को उन्होंने कंट्रोल कर लिया था, but still in spite of that, people exercise their vote in a very proper way, and they so people exercise their vote in a very proper way. So this is actually, a democratic achievement. So I hope, the political history of Maldives is clear to all of you. Thank you for watching this video.